So, the topic of the day is critical care insurance. Yeah, tell me. Yeah. About the time being, this arrangement is not is discontinued because the reinsurance treaty is not renewed so far. When it is renewed, they will start. They have already given some policies for longer term. Right. So this is critical care insurance today. Critical care insurance relates to the health insurance product. It's a health insurance product. Before we go into the deep of the product, let us understand what is the critical illness, how it is impacting, what are the key features, what is waiting period, what are the diseases covered, main exclusions, claim process, guidelines, and premium details. Everything we will discuss in brief. तो सबसे पहले कुछ हिंदी मीडियम वालों को भी हेल्प कर दूं। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि क्रिटिकल इलनेस का मतलब होता है कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज जिससे कि जीवन ही खतरे में है। जैसे अचानक हार्ट अटैक हो गया, या कैंसर हो गया, या किडनी फेल हो गई, या लीवर फेल हो गया। They are all life-threatening disease. Health-related condition of serious nature is called critical illness. Health-related condition of serious nature is called critical illness. The critical illness patient may require many things. वेंटिलेटर भी चाहिए, लाइफ सपोर्ट सिस्टम भी चाहिए। इट डिपेंड्स अपॉन द सीरियसनेस ऑफ द डिजीज। कितना सीरियस है डिजीज, किस स्टेज पर है, कब डायग्नोज हुआ है। आपने सुना होगा समटाइम द कैंसर इज डायग्नोज्ड एट द थर्ड स्टेज व्हेन द टाइम फॉर सर्वाइवल विद द पेशेंट इज वेरी शॉर्ट। Similarly, heart attack. Heart attack doesn't give you the time unless it is immediately taken care of. If it is immediately attended by the doctors, your survival is 100%. But if you are at a place where the doctor cannot reach and you have suffered a heart attack, survival is most difficult. This kind of serious nature diseases are called critical illnesses. क्या इम्पैक्ट होता है क्रिटिकल इलनेस का? If one person in the family is suffering from critical illness, that entire family will suffer mentally, physically and financially. Why? Mental torture is there, physical tiredness is there, running after the patient to attend. Financial burden is there because doctors are charging very high fees for the treatment of such diseases. Hospitals are charging continuous expenses. And these expenses can be long-term and recurring, like physiotherapy, rehabilitation charges, full-time nursing care, structural changes in the house or patient's bed. So they all need long-term recurring charges.
and family would need to pay them regularly, continuously. The patient, if he is the only member who is earning, if he has suffered the critical illness, that means reduction of regular income is also there. Loss of job could also be there. Respect of excellent medical insurance or medical services, critical illness is a tremendous burden, tremendous financial burden. But fortunately in India, the survival rate is very good because the treatment facilities are there, advanced medical facilities are there, and even insurance facilities are there. So this combination of all these three things have increased the survival rate of the critical illness patients. Just have an idea. What is the cost of treatment of the critical illnesses? Say suppose someone is suffering from the heart disease. Now in heart disease, angioplasty is a routine feature. Angioplasty takes 2 lakh to 4 lakh. Bypass surgery takes 2 lakh to 6 lakhs. Congenital heart disease takes 2 lakh to 6 lakhs. Valve replacement, which is very common among the children. आजकल बच्चों में valve replacement की बहुत समस्या बढ़ रही है. हार्ट वाल्व की 5 लाख से खर्चा शुरू होता है. और किसी का बाई चांस कोई बॉडी पार्ट फेल हो गया, जैसे हार्ट ट्रांसप्लांट होना है, 15 लाख मिनिमम, 15 to 25. Liver transplant 25 to 35. Kidney transplant 3 lakh to 14 lakh. 3 lakh because the treatment cost is low, but the kidney availability is difficult. Kidney availability is most difficult. Lung transplant 14 lakh to 16 lakh. This is a normal estimate of the expenditure. It depends upon the locality and the hospitals. आप कहीं छोटे से छोटे शहर में भी खर्चा, अगर ये ट्रीटमेंट करा रहे हैं जहाँ पर के फैसिलिटी अवेलेबल है ट्रीटमेंट की, तो कॉस्ट तो आई. और आप बहुत बड़ी लोकेशन पर बहुत बड़े हॉस्पिटल में करा रहे हैं तो उसके हिसाब से बिल बढ़ जाएगा. अब किसी को कैंसर बाई चांस डायग्नोस हो जाए तो कैंसर में केमियोथेरेपी नॉर्मल फीचर है. 63,500 से स्टार्ट होती है, 2 लाख रुपए तक लगती है. लेडीज में ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन है, 2 लाख से 4 लाख तक का खर्चा आता है. प्रोस्टेट कैंसर 4 लाख से 6 लाख का खर्चा आता है. न्यूरोसाइंस, नॉर्मली एक्सीडेंट्स होते रहते हैं लोगों के, तो ब्रेन पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट आता है. और ब्रेन का मतलब है डीप ब्रेन स्टिमुलेशन हो गया तो 12 से 15 लाख का खर्चा है. पेरिफेरल नर्व सर्जरी है तो 2.5 से 4 लाख. ये एक रफ एस्टिमेट इसलिए है कि भगवान की दया से आप पर हम बचे हुए हैं, लेकिन हर 5वें 6ठे घर का कोई ना कोई आदमी इस चीज़ों से सफ़र कर रहा है. क्रिटिकल इलनेसेस आर वेरी कॉमन इन इंडिया, वेरी कॉमन. रीजन बीइंग आवर लाइफ स्टाइल, आवर फूड हैबिट्स, our stress and strain on the body, no yoga, no physical care of body fitness. ये सब बड़ी कॉमन चीज़ें हैं. क्या करेगा क्रिटिकल इलनेस? क्रिटिकल इलनेस कवर इज ए बेनिफिट बेस्ड इंश्योरेंस कवर. ये एक लाइन बहुत डिफिकल्ट है, इसको समझना. क्रिटिकल इलनेस कवर इज ए बेनिफिट बेस्ड इंश्योरेंस कवर, यानी कि इन हेल्थ इंश्योरेंस देयर आर 2 काइंड ऑफ पॉलिसीज. वन इज इंडेमनिटी बेस्ड एंड द अदर इज बेनिफिट बेस्ड. हेल्थ इंश्योरेंस में 2 तरीके की पॉलिसियाँ होती हैं, एक इंडेमनिटी बेस्ड, दूसरा बेनिफिट बेस्ड. इंडेमनिटी बेस्ड में क्या होता है? रियम्बर्समेंट होता है. जितना आपका दवाई आपका खर्चा, ट्रीटमेंट का खर्चा हुआ है वो
इंश्योरेंस कंपनी आपको रियम्बर्स करेगी, उसमें से जो पॉलिसी के हिसाब से काटने वो काट देगी। हो सकता है 20 लाख आपके खर्चे हुए हों और इंश्योरेंस कंपनी 12 लाख का ही क्लेम पे कर रही है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो पॉलिसी में कवर नहीं थी काट दी उन्होंने। ये तो होता है इंडेमनिटी बेस्ड। बेनिफिट बेस्ड मीन्स आपका बीमारी पे खर्चा हुआ हो भले 20 लाख, पॉलिसी आपने ले रखी 40 लाख की, तो 40 लाख मिलेगा पूरा, एक पैसा भी नहीं कटेगा। और फिर आप उस 40 लाख को लेके कुछ भी करो, ये आपकी मर्जी है। तो बेनिफिट बेस्ड में कुछ नहीं करता, रियम्बर्समेंट में सिस्टम नहीं है, बिल भी नहीं लिए जाते, लंप सम मनी पे किया जाता है। If you are diagnosed with any of the named critical illnesses, benefit based insurance will pay you lump sum amount, एक ही बार में एक मुश्त। तो बेनिफिट बेस्ड इंश्योरेंस पॉलिसी बहुत अच्छी है। और क्या फीचर है पॉलिसी की? 22 क्रिटिकल इलनेसेस कवर्ड है पॉलिसी में। अगर उनमें से कोई एक भी हो जाती है पॉलिसी पीरियड में और पॉलिसी कंडीशंस कंप्लाई हो जाती हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी विल पे यू लंप सम वन टाइम बेनिफिट। दिस लंप सम वन टाइम बेनिफिट will be the limit selected by the beneficiary or by the insured. What limit you are selecting for yourself, that limit will be paid to you. Only one lump sum payment shall be provided during the insured's lifetime. पॉलिसी आपने 1 साल के लिए ली है, उसी में अगर आपको डिजीज हो गई, क्लेम इंश्योरेंस कंपनी ने पे कर दिया, तो लाइफ टाइम के लिए वो डिजीज के लिए पेमेंट हो गया। अब उसको उस बीमारी का लिए दोबारा क्लेम नहीं देगी पॉलिसी। ड्यूरिंग द इंश्योर्ड लाइफ टाइम रिगार्डलेस ऑफ द नंबर ऑफ क्रिटिकल इलनेसेस सफर्ड बाय, किसी भी एक क्रिटिकल इलनेस के लिए पे हो गया तो नो क्रिटिकल इंश्योरेंस, पॉलिसी विल बी टर्मिनेटेड आफ्टर द लंप सम पेमेंट एंड विल नॉट बी रिन्यूड फर्दर। और क्या फीचर्स हैं? इस पॉलिसी में लंप सम पेमेंट मिलता है अगर क्रिटिकल इलनेस का डायग्नोस हुआ है, तो कोई सब लिमिट नहीं है, कोई कैपिंग नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है, कोई नॉन मेडिकल एक्सपेंस नहीं है। At which nothing will be deducted. These all deductions are there in the indemnity-based policy, like Mediclaim. Sublimits, cappings, conditions, non-medical expenses, they are all deducted. But in this policy, that is benefit-based policy, nothing will be deducted. If the claim is payable, full limit selected by you will be paid lump sum one time. No impact on any other insurance policy. ये बहुत बड़ा फैक्टर है। No impact on any other policy. मान लिया you are having आयुष्मान भारत, चिरंजीवी, मेडिक्लेम, आरोग्य संजीवनी, they are all indemnity-based policies. If one critical illness is there in the policy, for that one critical illness you can claim under both the policies, Mediclaim also and then this critical care insurance also. कोई इम्पैक्ट नहीं है एक दूसरे का, क्योंकि दोनों पॉलिसी अलग अलग तरीके की हैं। वन इज इंडेमनिटी बेस्ड, सेकेंड इज बेनिफिट बेस्ड। For one disease, you can take 2 claims under both the policies. Benefit-based policy will pay you full lump sum amount, and indemnity-based policy will pay you after deductions. So this is very good factor, and everybody should take 2 policies: one indemnity-based, second benefit-based. This is good because the critical illness is also covered and normal sickness is also covered.
So no pre-policy checkup required up to 45 years. 45 साल तक के व्यक्ति को पॉलिसी दी जाएगी और 45 साल तक के पर्सन को पॉलिसी देते समय कोई मेडिकल चेकअप की जरूरत नहीं है. Premium is exempted under Section 80D of Income Tax Act 1961. हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज पर जो प्रीमियम पे किया जाता है उसका इनकम टैक्स में एग्जम्पशन मिलता है. हमारे बड़े अफोर्डेबल एंड कॉम्पिटिटिव प्रीमियम रेट्स हैं मार्केट में. एक बार जो इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम पे कर दिया, अब इंश्योर्ड की मर्जी है, वो चाहे तो इलाज पर खर्च करे, चाहे तो अपना लोन चुकाए, चाहे तो विदेश घूमे, जो मर्जी करे उस अमाउंट का, कोई कंडीशन नहीं है, बिल की भी जरूरत नहीं है. फिर इंश्योरेंस कंपनी नहीं पूछेगी व्हाट यू आर डूइंग ऑफ दिस अमाउंट व्हिच वी आर पेइंग अंडर द पॉलिसी. Insurance company is paying because you are entitled for that. You have complied with the conditions of the policy. अब ये पॉलिसी कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको समझना बहुत जरूरी है. क्या कंडीशन है देखिए. दो पॉलिसी कंडीशन है. फर्स्ट, इनिशियल वेटिंग पीरियड. For 90 days from the date of taking the policy, insurance company will not pay any claim. 90 days. If I have taken a policy today, on the 82nd day, if I went to a doctor, मैंने चेकअप कराया, डॉक्टर ने मुझे कहा आपको किडनी फेल हो गई है. मैंने क्लेम फाइल किया इंश्योरेंस कंपनी पे, इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम उठा के रिजेक्ट कर दिया. आपका भी 90 डेज का वेटिंग पीरियड कंप्लीट नहीं हुआ है. ये वेटिंग पीरियड केवल फर्स्ट पॉलिसी पर होगा, रिन्यूअल पर नहीं होगा. नो इनिशियल वेटिंग पीरियड आफ्टर फर्स्ट रिन्यूअल. फिर आप 10 साल, 20 साल, 50 साल, जितने साल पॉलिसी को रिन्यू करते रहिए, कोई वेटिंग पीरियड का डिडक्शन नहीं है. केवल पहली पॉलिसी पर 90 डेज का वेटिंग पीरियड है. तो पहली कंडीशन का कंप्लाई होना इंपॉर्टेंट. कंडीशन नंबर 2, सर्वाइवल पीरियड ऑफ 30 डेज. जिस डेट को डायग्नोस हुआ है क्रिटिकल इलनेस का, उसके 30 डेज तक जीवित रहना है. अगर 30 डेज के अंदर डेथ हो गई तो इसका मतलब यह है कि या तो पहले से ही चल रही थी या बहुत सीरियस स्टेज पे थी. और दोनों कंडीशन का पूरा होना जरूरी है, 90 डेज का भी और 30 डेज के सर्वाइवल पीरियड का भी. लेकिन 90 + 30 120 डेज नहीं है. ऐसे आप जो इसको नहीं जोड़ सकते. 90 डेज आपके स्टार्ट होंगे पॉलिसी की डेट से. If you are taking Syndicate Care insurance policy today, that is 25th October, 25th November, 25th December, 25th January. लेकिन जो 30 डेज का सर्वाइवल पीरियड हो गया, वो पॉलिसी की कमेंसमेंट डेट से स्टार्ट नहीं होगा, और डायग्नोसिस की डेट से स्टार्ट होगा. मान लिया पॉलिसी ले हुए आपको 8 महीने हो गए, अब आप डायग्नोसिस चेक कराने गए हैं अपने आप को, कोई तकलीफ हो गई, पेट में दर्द हो गया, वही दिखाने गए तो डॉक्टर ने कहा कि आपको कैंसर है या किडनी फेलियर है या कोई हार्ट अटैक है, कोई क्रिटिकल इलनेस है. तो वो 30 डेज कहाँ से काउंट हुए? जिस डेट को डायग्नोस हुआ, उनका 90 डेज से कोई कनेक्शन नहीं. तो 90 + 30 120 इज नॉट करेक्ट. 90 days waiting period from the date of policy issuance, 30 days survival period from the date of diagnosis. Both are two different things. They cannot be clubbed together. Both will be counted from the different date. One from the date of taking the policy, other from the date of diagnosis. ये सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि दोनों ही कंडीशन कंप्लाई होनी चाहिए. आपको और एग्जांपल देकर क्लियर करता हूँ.
इंश्योर्ड पॉलिसी थी 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक की। ये पॉलिसी 12 महीने की, 1 साल की फ्रेश पॉलिसी है। फ्रेश पॉलिसी में 90 डेज का वेटिंग पीरियड अप्लाई होगा। तो उसने 1 जनवरी 2024 को ली है और वो 15 जनवरी को डॉक्टर के पास दिखाने चला गया। डॉक्टर ने उसको कहा यू हैव कैंसर ऑफ स्पेसिफाइड सीपीएड। उसने डॉक्टर को कहा मेरे पास इंश्योरेंस पॉलिसी है, मैं इंश्योरेंस कंपनी में कैंसर मेरी कवर्ड है। डॉक्टर ने कहा क्लेम फाइल कीजिए। क्लेम फाइल किया तो इंश्योरेंस कंपनी ने एक लाइन लिख दी, The claim is repudiated since you have not completed 90 days waiting period. This is only 15th day of risk commencement date. Claim खारिज। 15वें दिन ही क्लेम फाइल करेंगे तो वेटिंग पीरियड तो कंप्लीट नहीं हुआ ना। दूसरी सिचुएशन, सेकंड एग्जांपल लीजिए, क्योंकि कंडीशन 2 है, दोनों का पालन होना जरूरी है और पहले साल में दोनों कंडीशन लागू होंगी, केवल सेकेंड ईयर से एक ही रह जाएगी। तो फर्स्ट ईयर में फ्रेश पॉलिसी है, दोनों कंडीशन कंप्लाई होनी चाहिए। सेकेंड एग्जांपल, पॉलिसी लिया 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक। 1 जनवरी को लिया, लेकिन 15 अप्रैल को आप मेडिकल चेकअप के लिए गए हैं और डॉक्टर ने कहा कि यू हैव ओपन चेस्ट CABG, मीन्स हार्ट डिजीज है, आपको बाईपास सर्जरी होगी। ये बाईपास ग्राफ्टिंग होगी, कार्डियक डिजीज है। तो यहाँ पॉलिसी लिया 1 जनवरी से, डायग्नोज हुआ 15 अप्रैल को। 1 जनवरी से 15 अप्रैल का मतलब 105 डेज, 105 डेज ऑफ रिस्क कमेंसमेंट डेट। इट मीन्स 90 डेज वेटिंग पीरियड इज ओवर। तो यू हैव कंपेयर्ड विद द फर्स्ट कंडीशन। अब इसमें दूसरी कंडीशन भी कंप्लाई होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन कैसे कंप्लाई होगी? 15 अप्रैल को डायग्नोस हुआ तो 15 अप्रैल से 15 मई तक सर्वाइव रहना जरूरी है। और वो बड़ा आसान है, क्योंकि एक बार डिजीज डायग्नोस हो गई तो फिर डॉक्टर मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर देता है। जो भी ऑपरेशन, प्रेस्क्राइब मेडिसिन, टेस्ट, जो कुछ भी करना है, फिर आप एक बार मेडिकल कंसल्टेशन में आ जाते हैं तो योर ट्रीटमेंट स्टार्ट्स। तो सर्वाइवल इज नॉट डिफिकल्ट इफ इट इज टाइमली डायग्नोस्ड। अब दोनों कंडीशन कंप्लीट हो जाएंगी 15 मई को। उसके बाद क्लेम फाइल किया जा सकता है, इंश्योर्ड विल गेट द क्लेम। तो दोनों ही कंडीशन इंपॉर्टेंट है। अब समझना यह है कि ये क्रिटिकल इलनेस कौन सी कवर्ड है, क्योंकि 22 क्रिटिकल इलनेसेस आर इंश्योर्ड अंडर द पॉलिसी। जस्ट फॉर द नेम सेक, let us understand what these 22 critical illnesses are there. मैं सिर्फ नाम पढ़ूंगा क्योंकि आपको इन बीमारियों को समझना नहीं है। आप मेडिकल के स्टूडेंट तो है नहीं, डॉक्टर आप है नहीं, किसका क्या सिम्टम है, किसका क्या ट्रीटमेंट है, क्या कितना लंबा चलेगा, ये सब जानने की जरूरत नहीं है। आपको नाम भी इसलिए जानना है कि कल को कोई आपका इंश्योर्ड आके ये कहता है कि मेरे को मल्टीपल सेलरीज विद परसिस्टिंग सिम्टम है, या बिनाइन ब्रेन ट्यूमर है, या मेरे को एंड स्टेज लीवर फेलियर है, तो आप उसको ये समझा सकें कि हाँ ये हमारी पॉलिसी में कवर्ड है। आपके अगर दोनों कंडीशन कंप्लाई हो गई तो आपको इंश्योरेंस कंपनी क्लेम पे करेगी। इसलिए 22 के 22 क्रिटिकल इलनेसेस को नाम जानना जरूरी है, क्योंकि बीमारियों के नाम मेडिकल लैंग्वेज में होते हैं। मेडिकल लैंग्वेज का मतलब क्या है?
जैसे नाम है मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ओपन चेस्ट CABG, ओपन हार्ट रिप्लेसमेंट और रिपेयर ऑफ हार्ट वर्ड्स, एंजियोप्लास्टी, प्राइमरी इडियोपैथिक पल्मोनरी हाइपरटेंशन, ये सब हार्ट से रिलेटेड डिजीज। फिर किडनी फेलियर रिक्वायरिंग रेगुलर डायलिसिस, मेजर ऑर्गन ट्रांसप्लांट, एंड स्टेज लीवर फेलियर, लॉस ऑफ लिम्स, ब्लाइंडनेस, डीफनेस, एंड स्टेज लंग फेलियर, 3rd डिग्री बर्न। इन सिचुएशंस में नॉर्मली ट्रांसप्लांटेशन होता है। देन कैंसर ऑफ स्पेसिफाइड सीवियरिटी, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, ये सबसे ज़्यादा घातक बीमारियां हैं, इनमें टाइम बहुत कम मिलता है। अगर इनिशियल स्टेज पर ही ट्रीटमेंट हो जाए तो बहुत अच्छा है। देन स्ट्रोक रिजल्टिंग इन परमानेंट सिम्टम्स, परमानेंट पैरालिसिस ऑफ लिम्स, मल्टीपल सर्जरीज विद परसिस्टिंग सिम्टम्स, मेजर हेड ट्रॉमा, बेनाइन ब्रेन ट्यूमर, लॉस ऑफ स्पीच, मोटर न्यूरॉन डिजीज विद परमानेंट सिम्टम्स एंड कोमा ऑफ स्पेसिफाइड सीवियरिटी। इनमें से ज़्यादातर ब्रेन से रिलेटेड डिजीज है। अब ये अलग अलग तरीके की 22 डिजीज हमने इस क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी में कवर की, और 22 इज ए गुड नंबर। ऑलमोस्ट ऑल मेजर क्रिटिकल इलनेसेस आर कवर्ड अंडर द पॉलिसी। मेजर एक्सक्लूजन में क्या है? सारी हेल्थ पॉलिसीज में प्री एग्जिस्टिंग डिजीज कवर नहीं होती। प्री एग्जिस्टिंग का मतलब पहले से ही है डिजीज। आप पॉलिसी इसलिए ले रहे हो कि आपको खर्चा नहीं है आपके पास कराने का इलाज, इंश्योरेंस कंपनी से खर्चा चाहिए। कोई कंपनी नहीं देगी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के लिए। झूठ बोल के लोगे तो क्लेम नहीं देगी कंपनी। तो नॉर्मली 48 मंथ का वेटिंग पीरियड होता है, यानी 4 साल का। कुछ कंपनियों ने कम भी कर दिया होगा, 3 साल का, 2 साल का भी हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन द हेल्थ प्रोडक्ट्स। फिर इंटेंशनल सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी कवर नहीं है, मेंटल डिसऑर्डर, नर्वस डिसऑर्डर, एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन, एड्स और HIV, ये पॉलिसी में से एक्सक्लूडेड है। प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ टर्मिनेशन भी एक्सक्लूडेड है। Any critical illness based on a diagnosis made by the insured or his family who is living in the same household or by a herbalist, acupuncturist or other non-traditional healthcare provider, ऐसे कोई भी क्रिटिकल इलनेस कवर्ड नहीं है जो कि हमारी 22 के अलावा हो। ये कवरेज है पॉलिसी का। अगर बाई चांस 22 में से कोई एक डिजीज हुई है तो आपको करना क्या है? इंश्योर को सिर्फ ये समझाना है कि विदिन 48 आवर्स इंश्योरेंस कंपनी को इंटीमेशन दे दो। जैसे ही डायग्नोज हुई है क्रिटिकल इलनेस, डॉक्टर ने बताया कि आपको ये बीमारी हुई है, आपको भर्ती कर लिया गया है, आपका इलाज शुरू हो रहा है, आप अपने मोबाइल से, ईमेल से, टोल फ्री नंबर पे कॉल करके इंश्योरेंस कंपनी को सिर्फ इंटीमेशन दें। आपकी पॉलिसी ठीक की जाएगी, क्लेम रजिस्टर हो जाएगा, KYC डॉक्यूमेंट्स आपको ऑनलाइन ही मांग ली जाएंगे। क्लेम के लिए सिर्फ 2 मेजर डॉक्यूमेंट चाहिए बस। पहला है पॉजिटिव इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कन्फर्मिंग द डायग्नोसिस, यानी डॉक्टर की वो रिपोर्ट जिसमें कि ये बताया गया कि आपको ये बीमारी क्रिटिकल इलनेस हुई है। और दूसरा ट्रीटिंग डॉक्टर सर्टिफिकेट कन्फर्मिंग द डायग्नोसिस, दूसरा डॉक्टर का जिसके या उसी डॉक्टर का जिसने कि ये बताया कि अब आपका ये इलाज होगा, इतने दिन चलेगा, इस तरीके से ये मेथड रहेगा, ये ऑपरेशन, ये टेस्ट होंगे। तो डॉक्टर का सर्टिफिकेट और पॉजिटिव इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, बस ये 2 डॉक्यूमेंट चाहिए। और भर्ती है तो ये सबसे पहले दोनों यही डॉक्यूमेंट बनते हैं। 48 आवर्स में क्लेम की इंटीमेशन दे दी तो क्लेम रजिस्टर हो जाएगा। क्लेम
डॉक्यूमेंटेशन के 15 दिन बाद ही क्लेम सेटल हो जाता है इंश्योरेंस कंपनी की, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि बस ये 2 चीज़ें देखी जाती हैं कि दोनों पॉलिसी कंडीशन कंप्लाई हुई हैं और दूसरा 22 में से एक क्रिटिकल डिजीज हुई है, बस। बाकी मेडिकल के पेपर तो मिल ही जाएंगे क्योंकि आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, बिल्स आपसे चाहिए। तो ये जो पॉलिसी है ये 5 से 45 साल तक के पर्सन को दी जा सकती है, लेकिन पॉलिसी लेने वाला 18 साल से ज़्यादा का होना चाहिए। अगर कोई 15 साल का लड़का अपने लिए पॉलिसी लेना चाह रहा है तो उसको नहीं मिलेगी, क्योंकि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी विद ए माइनर। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज ऑलवेज विद ए मेजर एंड बिलो 18 years of age और मोर देन 18 years of age। सम इंश्योर्ड आप 1 से 5 लाख दे सकते हैं, 10 लाख का भी दे सकते हैं। प्रीमियम की डिटेल ऑलरेडी आपको दी हुई है, मैं अभी एक्सप्लेन कर दूँगा। 45 साल से ज़्यादा के पर्सन को नहीं देंगे आप, मैक्सिमम अप टू 45 years, बट वंस द पॉलिसी इज गिवन इट कैन बी रिन्यूड कंटिन्यूसली अप टू 70 years। In case of adverse medical history, our underwriting department can ask for previous history also, क्योंकि कंपनी में टैली MER से टाई अप है। टैली MER के पर्सन प्रपोजल फॉर्म को स्क्रूटनाइज करेंगे और प्रपोजल के एक्सेप्टेंस रिजेक्शन पर डिसीजन लेंगे। कोई पास्ट हिस्ट्री है, कोई टोबैको हैबिट्स हैं, स्मोकिंग हैबिट है, एल्कोहल हैबिट है, वो दे विल रिव्यू इट, दे विल एनालाइज इट। सो अंडरराइटिंग टीम विल एनालाइज द प्रपोजल एंड विल टेक द डिसीजन। इफ देयर इज एनी प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ द सिकनेस और क्रिटिकल इलनेस, देन द टेस्ट कैन बी एडवाइज्ड। सो अगर कोई मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए एडवाइज किया जा रहा है, pre-policy checkup may be required depending on the medical history, age and sum insured at the company specified center at your own cost। अगर आपको ये कहा गया है कि आप पहले मेडिकल चेकअप कराइए और अपनी रिपोर्ट दीजिए और ये हमारी कंपनी का ये सेंटर है वहाँ से करा लीजिए, आपको फीस इतनी देनी होगी, तो ये पॉसिबल है। लेकिन ये वहीं होगा जहाँ प्री एडवर्स फीचर हो या कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज, नॉट अदरवाइज। अब पॉलिसी का प्रीमियम कैसे कैलकुलेट होगा? हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम हमेशा एज बैंड के हिसाब से लिया जाता है। दिस इज नॉट अ पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी वेयर द रिस्क इज कैटेगराइज्ड इनटू 3 कैटेगरीज: medium risk, lower risk, higher risk. No. Health insurance premium is always calculated on the basis of the age band. For minors 5 to 17, 18 to 25, 26 to 30, 31 to 35, 36 to 40 and 41 to 45. We are giving the policy to not more than for 45 years of age. Sum insured can be taken in multiples of lakhs: 1 lakh, 2 lakh, 3 lakh, 4 lakh, 5 lakh, and even 10 lakhs. Up to 10 lakh we are giving. देखिए, सिर्फ कोई माइनर अगर ले रहा है 16 साल का, 17 साल का, 5 लाख की पॉलिसी, तो प्रीमियम इज ओनली 1940 प्लस GST। और उसी को अगर कोई 43 years का पर्सन ले रहा है और 5 लाख, the premium is 7985 plus GST. If it's taken for 10 years, premium can be doubled. So this is only one plan. This is known as advance plan. No other plan is there under the critical illness. एक ही प्लान है। सम इंश्योर्ड की लिमिट है 10 लाख की। ज़्यादा चाहिए तो अंडरराइटर को प्रपोजल भेजिए, वो ओके कर सकता है।
प्रीमियम एज के हिसाब से लिया जाएगा। प्रीमियम जो भी दिया जाता है दैट इज एग्जम्प्टेड अंडर सेक्शन 80D ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। पॉलिसी को 3 कंडीशन में टर्मिनेट किया जा सकता है। इंश्योर की डेथ हो गई, या उसमें कोई क्रिटिकल इलनेस का पेमेंट हो चुका हो फुल सम इंश्योर, या पॉलिसी एक्सपायर हो गई, तो पॉलिसी ऑटोमेटिक खत्म हो गई। अब ये टीम है सपोर्ट ऑफिस में, ये टीम आपके हेल्प के लिए बिठाई गई है। ये टीम आपको पूरा सपोर्ट करेगी। आपका कोई प्रपोजल अगर है और उस पर आपको किसी भी तरीके की कोई क्वेरी चाहिए, तो ये पर्सन का नाम है, ये उसकी रोल और रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये उसका कॉन्टैक्ट नंबर है, ये आपका ईमेल आईडी है। आपका अगर कोई प्रपोजल मटेरियलाइज नहीं हो रहा है, कोई प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया गया है, आप कारण जानना चाहते हैं, तो आप बात कर सकते हैं। If there is any claim which is rejected, you can directly speak to Dr. Lingabel, who is health claim management officer. He will directly reply to your mail or your contact number. So this is the team which will help you at the time of giving the policy as well as at the time of giving the claim. अब क्वेश्चन ये है कि आपसे कोई क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी क्यों ले? दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। वाई? क्योंकि देर आर स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज, देर आर अदर इंश्योरेंस कंपनीज विच आर प्रोवाइडिंग मैनी हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। वाई यू? तो आपको अपने पॉलिसी के वो फीचर्स बताने हैं जो कि आपके यूएसपी है, यूनिक सेलिंग पॉइंट। हमारी पॉलिसी इंडेमनिटी बेस्ड नहीं है, बेनिफिट बेस्ड है। पॉइंट नंबर 1, जो भी क्लेम अमाउंट मिलेगा लमसम मिलेगा, और जितने बेनिफिट लिमिट आपने सेलेक्ट की है 5 लाख 10 लाख मिलेगा, नो डिडक्शन। वी विल टेक नो हॉस्पिटलाइजेशन बिल्स। ये पैसा आपको फाइनेंशियल सपोर्ट है, आप उससे कुछ भी करें, वी आर नॉट गोइंग टू आस्क। ये आपके मेजर क्रिटिकल इलनेसेस को ट्रीट करने के काम आएगा, क्योंकि उनमें बहुत पैसा चाहिए होता है। इस पैसे के मिलने के बाद आपकी फैमिली को जो मेंटल, फाइनेंशियल और फिजिकल सपोर्ट मिलेगा, द इंश्योर्ड कैन बी क्योर्ड वेल इन टाइम। क्योंकि लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट, एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट, अफोर्डेबल ट्रीटमेंट, अफोर्डेबल अमाउंट होना चाहिए। तो हमारी पॉलिसी का प्रीमियम भी अफोर्डेबल है और बेनिफिट बेस्ड पॉलिसी भी है, और जो भी प्रीमियम दिया जा रहा है दैट इज एग्जम्प्टेड। पर पॉलिसी में सिर्फ 2 कंडीशन जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो आपको कस्टमर को समझाएं कि पहली पॉलिसी पर, यानी कि फ्रेश पॉलिसी व्हेन यू आर टेकिंग, 90 days वेटिंग पीरियड विल अप्लाई। कंपनी कांट हेल्प यू इफ यू आर डायग्नोज्ड विद एनी क्रिटिकल इलनेस बिफोर 90 days। 90 डेज से पहले अगर हो गई है, आप उसे छिपा रहे हैं, 90 डेज के बाद उसे फाइल कर रहे हैं, तो भी आपके दोनों पेपर तो मांगे जाएंगे। उन दोनों में डेट पता लग जाएगी। हालांकि मार्केट में क्या कुछ होता है हमें पता नहीं, लेकिन हमारी दोनों कंडीशन कंप्लाई होनी चाहिए। 90 days फ्रॉम द डेट ऑफ इंसेप्शन ओनली फॉर द फर्स्ट एंड फ्रेश पॉलिसी। सब्सिक्वेंट रिन्यूअल्स के लिए कोई भी वेटिंग पीरियड की कंडीशन लागू नहीं है।
और 90 डेज में से अगर 88 भी है तो भी क्लेम नहीं मिलेगा। 91 है तो मिल जाएगा। सेकेंड कंडीशन इज सर्वाइवल पीरियड। सर्वाइवल पीरियड कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है, अनलेस कि बहुत ही ज़्यादा सीरियसनेस हो या हार्ट स्ट्रोक जैसी चीज हो। Once you are in the hands of the doctors or you are in the attended by the medical doctors or physicians or hospitalized properly, survival is most easy because the treatment facilities are there, proper hospitals are there, test and laboratories are there. तो वो जो 30 डेज के वेटिंग पीरियड का सवाल है, दैट इज सेकेंडरी। पहली कंडीशन 90 डेज के वेटिंग पीरियड की। 30 डेज तो डेट ऑफ डायग्नोसिस से गिने जाएंगे, लेकिन ये जो 90 डेज का वेटिंग पीरियड होगा ये पॉलिसी की कमेंसमेंट डेट से काउंट होगा। और अगर एक कंडीशन कंप्लाई हुई है दूसरी नहीं हुई है तो भी क्लेम नहीं मिलेगा, दूसरी हो गई है पहली नहीं हुई है तो भी क्लेम नहीं मिलेगा। तो यही दोनों कंडीशन जो इम्पोर्टेंट है, जिनमें से पहले साल के बाद तो केवल एक ही रह जाएगी और वो भी डिफ़िकल्ट नहीं है, तो क्लेम मिलना तो डिफ़िकल्ट नहीं है और क्लेम प्रोसेस भी बहुत ईजी है, बिल्स भी नहीं चाहिए। बस आपकी रिपोर्ट जो कि पॉजिटिव है, पॉजिटिव रिपोर्ट कहना हेल्थ में उल्टा मीनिंग देता है, क्योंकि बाकी लाइफ में हम जो पॉजिटिव वर्ड यूज़ करते हैं वो गुड सेंस में यूज़ करते हैं, लेकिन सिकनेस के केस में, डॉक्टर्स के केस में और हेल्थ के केस में अगर कोई रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है, दैट मीन्स द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम दैट सिकनेस, तो वहाँ वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। और वो पॉजिटिव रिपोर्ट ये कंफर्म करेगी कि यू आर डायग्नोज्ड विद सच एंड सच क्रिटिकल इलनेस विच इज़ कवर्ड इन आवर पॉलिसी। अगर कोई क्रिटिकल इलनेस आपको हुई भी है, 90 डेज का वेटिंग पीरियड भी आपने क्रॉस कर लिया है, 30 डेज का सर्वाइवल पीरियड भी क्रॉस कर लिया है, लेकिन पता चला कि वो क्रिटिकल इलनेस हमारी 22 डिजीज में कवर्ड ही नहीं है, तो भी इंश्योरेंस कंपनी क्लेम पे नहीं करेगी, क्योंकि ऐसी भी कोई ना कोई क्रिटिकल इलनेस हो सकती है जो 22 डेज में क्रिटिकल इलनेस में कवर नहीं है, शामिल नहीं है। तो ये दोनों कंडीशंस प्लस वन ऑफ द 22 क्रिटिकल इलनेसेस आर मोस्ट इम्पोर्टेंट। लेकिन पॉलिसी को सेल करना बहुत आसान है, क्योंकि पॉलिसी का सेल करने के लिए प्रीमियम का जो चार्ट है दैट इज वेरी सिंप्लीफाइड। आपसे कोई भी आदमी अगर 32 साल का आया आपके पास और कहता है भाई मुझे क्रिटिकल इलनेस का कवर करानी है, ठीक है, आप सजेस्ट कर दीजिए 5 लाख की पॉलिसी ले दीजिए। अब 32 साल के आदमी का 3125 प्लस GST प्रीमियम ले लीजिए उससे। वो कहता है कि 5 लाख से क्या होता है, आजकल छोटी मोटी बीमारियों में ही 8-10 लाख खर्च हो जाते हैं, ठीक है 10 लाख की ले लीजिए, 3125 का डबल कर दीजिए प्लस GST लगा दीजिए 18%, 10 लाख की मिल जाएगी। सो सिंपल इट इज। यहाँ तक कि आप माइनर को भी दे सकते हैं, 6 साल के बच्चे को भी कवर कर सकते हैं, लेकिन पॉलिसी लेने वाला उसका फादर मदर कोई ना कोई होना चाहिए जो कि एज ए गार्जियन बस उसका नाम रहेगा, उसकी डिजीज़ कवर नहीं होगी। डिजीज़ तो ऐसी की होगी जिसके लिए आप पॉलिसी ले रहे हैं। लाइफ एश्योर्ड या लाइफ इंश्योर्ड इज डिफरेंट। तो ये सारी चीज़ें पॉलिसी में समझने की हैं, जो कि बहुत ही सिंप्लीफाइड है, कॉम्प्लिकेशन नहीं है पॉलिसी में। आपको समझना ये है कि पॉलिसी जो है मेन पॉलिसी वो बेनिफिट बेस्ड है। अगर आपके पास कोई दूसरी तरीके की पॉलिसी भी है जिसमें कि इंडेमनिटी बेस्ड है
तो आप उसमें भी क्लेम लीजिए, इसमें भी क्लेम लीजिए, कोई एक दूसरे पर कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। और जो जितना बनता है उतना लीजिए। इस पॉलिसी में तो आपको 100% बनेगा, कुछ घटेगा ही नहीं। तो इस पॉलिसी में तो कुछ भी डायरेक्शन वाली स्थिति है ही नहीं। अब आपके पास कौन सी पॉलिसी है दूसरी इंडेमनिटी बेस्ड, आयुष्मान भारत है या चिरंजीवी है या मेडिक्लेम है या आरोग्य संजीवनी है, ये सारी पॉलिसियाँ मार्केट में अवेलेबल हैं। इंश्योरेंस कंपनियाँ इनको सेल कर रही हैं, हमारे पास नहीं है। हमारे पास क्या है, हमारा हॉस्पिटल डेली केस है, सर केयर है, क्रिटिक केयर है, तो हमारी हेल्थ पॉलिसी हम सेल करेंगे। और लेकिन हमारी तीनों की तीनों पॉलिसियाँ बेनिफिट बेस्ड पॉलिसी, इनका कोई भी इम्पैक्ट दूसरी पॉलिसी पर नहीं आएगा। अब किसी का कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। एनी डाउट ऑफ एनीवन? क्यों नहीं होगा? बच्चों को तो आजकल बहुत खतरनाक बीमारी हो रही है। बच्चों के दिल में छेद हो, हार्ट वाल्व में लीकेज हो, क्रिटिकल इलनेस में आता है। या हमारी पॉलिसी 22 में से 1 में कवर्ड है, तो बच्चे के लिए लेने में तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। 5 साल से 45 साल तक किसी के लिए भी लीजिए। और क्रिटिकल इलनेस तो किसी का, बच्चे का भी लीवर भी फेल हो सकता है, कोई ट्रांसप्लांटेशन तक की नौबत आ जाती है, किसी का हार्ट में छेद होता है, कुछ भी हो सकता है आजकल किसी को। ये दिस ऑल डिपेंड्स अपॉन द मेडिकल साइंस। वी आर नॉट डॉक्टर्स, वी आर नॉट एक्सपर्ट। मेडिकल साइंस हमारा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन डॉक्टर की रिपोर्ट पर डिपेंड करेगा कि ये क्रिटिकल इलनेस है या नहीं। बल्कि ये क्वेश्चन तो आपका उसमें काम करता है जो इंडेमनिटी बेस्ड पॉलिसी है, मेडिक्लेम वगैरह में हेल्थ की पॉलिसी है। वो जो इंडेमनिटी बेस्ड पॉलिसी हैं उनमें ये ज़रूर सोचता है आज की डेट में यंग लड़का लेने वाला कि भाई मुझे 30, 35, 40 साल तक तो क्या बीमारी हो रही है, तो क्या पॉलिसी की ज़रूरत है। लेकिन ये क्रिटिकल इलनेस तो किसी भी एज में किसी भी पर्सन को किसी भी फॉर्म में हो सकती है। ये तो बॉडी पार्ट ही कोई भी फेल हो सकता है, यहाँ तक कि कैंसर भी हो सकता है, यहाँ तक कि ब्रेन रिलेटेड डिजीज भी हो सकती है, हार्ट रिलेटेड डिजीज भी हो सकती है। नोबडी नोज, बहुत सीरियस नेचर की डिजीज होती है। यस, एनी अदर डाउट? मेल आईडी चेक कीजिए अपना। टेस्ट पेपर आ गया क्या? मिल गया? ठीक है। जिसको नहीं मिला है कि अपनी टीम के साथ शेयर कर दीजिए। और 10 क्वेश्चंस हैं, सभी को अटेम्प्ट कर लीजिए। सिंपल 10 क्वेश्चंस हैं।